तो वही चीजें मैं इन लोगों को सिखा रहा हूँ, इन यूथ, इंडियन यूथ को. द रीजन व्हाई आई एम जस्ट टैपिंग इनटू इंडियन ऑडियंस इज बिकॉज ऑफ दिस. कि मतलब जब मैंने शुरुआत की थी तो लोग यही बोलते थे इंडिया में कि यार ये यूट्यूब क्या है, और साला वो यूएस में बैठा हुआ 17 साल का बच्चा यूट्यूब में से पैसे कमा रहा था. तब मुझे खटका कि अपना इंडिया कितना पीछे है. मतलब 300 रुपए से जर्नी शुरू की है और अपने दम पे ही खड़ा हुआ हूँ. एंड दैट्स इट. बाकी तो मतलब एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि आपके बच्चे को बस अच्छी राह पे चलाओ आप. Hello. Hi Bhavesh. Hi. How are you? Hello, I'm sorry. Hi. Good evening. Good evening. Good evening. How are you? I'm great and excited, freaking out, nervous. I'm so sorry. Be normal. Take a deep breath. Take a deep breath and just talk. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Good. Good. How can I help you? Uh, my name is Bhavesh Kaushik and I'm a 12th class student, 17 years old. Awesome. And I'm really very passionate about launching online businesses, means especially the concept sales funnel. I have worked with 12 business owners and for free of course, just for finding out how exactly it can work. Uh, Not everything went great. मतलब बहुत तो बेकार ही चले गए. Many lost, but 4 of them went great. Awesome. And so sales funnel is the thing that passionates me more than anything in the world. Because there was a time when I used to thought, when I used to think that I am the creator of the concept of sales funnel, but then I met Russell Brunson and I was like, okay, he's the king. Let's follow him. Uh, and that said means now I'm in 12th class and अभी तक मैं 11th class से ये सब करता आ रहा हूँ, means I'm creating sales funnels Got and then I started doing it for other business owners also. But now is the point for I need to actually ask 2 questions. Number one, how can I actually take this thing to the next level? it. And number two, जो मेरे father के through question आया कि भवेश, now you have to take a degree. So do BTech, because some of my people are saying that BTech will help you in digital marketing, and some of them are saying BBA will help, and I can't actually explain them, and nearly मेरे पास भी शायद इतनी enough knowledge नहीं है. Means I'm really confused कि अब 3 महीने के बाद जब मेरे boards खत्म हो जाएंगे कि मुझे करना क्या है, what entrance exam I really need to do or something. Got it. I'll save you time. Number one, in fact, before number one, I'll tell you number two. That engineering करना है या नहीं करना है. So see, number one, you can try and give examples like people like me. All right, like I don't have a degree. Still, like I'm surviving. I'm decently surviving in digital marketing since past 10 years now. And yeah, that's the easiest answer which you can try Yep. to convince them. If they don't, then you take a call. That I mean, I'm sure it would be tough for them to understand that हाँ digital प्रतीक तो बन गया, उसके नसीब होंगे ये वो. Absolutely. That's the common thing which I know all the. So I've interacted with thousands of people, and this is the commonest thing which they tell, that हाँ उसके नसीब है इसलिए वो हो गया, उसका ये वो, तुम्हारा नहीं होगा. और वही चीज मेरे को भी बोली गई थी जब मैं तुम्हारे हाँ. सुना था कि कोई और जिसका मैं एग्जांपल देता था, वो नसीब है तो उसका हो गया ये वो, तुम्हारा नहीं होगा, बट मेरा हुआ. तो अभी उनको ऐसा लगता है कि हाँ मेरे भी नसीब है. सो इट्स द सेम पैटर्न, डोंट वरी. बट नाउ इफ दे आर नॉट एबल टू लाइक गेट कन्विंस्ड, यू आस्क योर क्वेश्चन, यू आस्क योरसेल्फ. मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आपके पापा जब आपको बोल रहे हैं कि बीटेक की डिग्री ले लो ये वो, इज योर फादर एबल टू फाइनेंस दैट इंजीनियरिंग इजीली? दैट्स माय क्वेश्चन. No. No. सो वो ऐसा सोच रहे हैं कि मेरा जो खुद का हार्ड एंड पैसा है वो मेरे बेटे के लिए मैं डिग्री में लगाऊं ताकि बेटा पढ़ लिख के फिर कमाए अपने लिए. ऐसा हो रहा है. Yep. ठीक है. ये सिचुएशन है ना, बहुत ट्रिकी है. नाउ दिस इज, आई मीन, आई कम फ्रॉम दिस सिचुएशन. दैट्स द रीजन व्हाई आई एम कॉन्फिडेंटली सेइंग दैट दिस इज ट्रिकी सिचुएशन, बिकॉज आई कम फ्रॉम दिस सिचुएशन. मेरे माँ बाप यही सोच रहे थे कि वो जो तब के जमाने के, मतलब मेरे टाइम पे 2007 की बात कर रहा हूँ. 2007 में जब मैं कॉलेज में एंट्री ली, तब टोटल 4 साल का खर्चा टोटल 5 लाख आने वाला था.
ठीक है, even though I had scored 88% in science. Okay. All right, so I was a good student, decent student. और वो भी हमारे टाइम पे केमिस्ट्री का पेपर सबसे टफ था हिस्ट्री में, इसलिए मेरे उसमें 78 आए थे, और फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स में 93 94 थे मेरे. Alright, or else I would have scored even more. I was targeting 90 plus easily. But anyways, nonetheless, so ये बहुत ही tricky situation है wherein you have to listen to your gut feeling. On top of that, you need to have those balls to go against somebody. I'm not saying your dad or your family. Go against somebody where you might think that हाँ नजदीक में उनको बुरा लगेगा, नजदीक में उनको मतलब वो रोएंगे, नजदीक में उनको लगेगा कि बेटा गलत दिशा में जा रहा है, नजदीक में उनको लगेगा कि ये साला प्रतीक करके कौन बंदा है जो भूसा डाल के चला गया. Alright, all of these things you might be hearing soon if you take that decision. That नहीं, कुछ भी हो जाए मेरे को डिग्री नहीं लेनी है, या तो मुझे जो करने का है वो इज में करेगा. ठीक है, so this is where it is super like very tricky situation where there is no fixed answer. Because इसलिए मैंने सबसे पहले तो यही क्लैरिफाई कर लिया कि मतलब do you come from, indirectly I was asking you, do you come from a very good financial background? The answer is no. ठीक है, so that's where like as a kid who is just 17 18 years old, you have to take that gut feeling, you have to take that decision. Luckily I didn't have those kind of things, and I took a drop because my dad got a paralytic stroke. There was nothing like digital fantasy because of which I took a drop, nothing like that. Right, वो तो मेरे पापा को पैरालिटिक स्ट्रोक आया. दैट्स द रीजन व्हाई इन इंजीनियरिंग आई वाज नॉट एबल टू अपीयर फॉर 6th सेमेस्टर एग्जामिनेशन, और उसकी वजह से मैंने ड्रॉप लिया पहला. एंड देन समथिंग हैपेंड ओवर हियर. मेरे फ्रेंड ने मेरे को रिच डैड पुअर डैड की बुक दी, कैश फ्लो क्वाड्रेंट्स की बुक दी, सब कुछ वो इकट्ठा हुआ मेरे लाइफ में. दैट्स वेयर आई थॉट नो, अब मेरे को वापस डिग्री नहीं लेनी, मतलब वापस कॉलेज नहीं जाना है, तो मैंने दूसरा ड्रॉप लिया. लेकिन पापा मम्मी को बोला नहीं था. ठीक है, लेकिन पापा मम्मी परिवार वाले सब लोग पूछेंगे तो सही ना कि क्या रिजल्ट आ रहा है. मैं एवं ही बोले जा रहा था, हाँ पास हो गया पास हो गया. देयर हैज टू बी अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम कि 2011 जब आने वाला था तब तो मुझे डिग्री दिखानी पड़ती अगर मैं झूठ बोलना सर्वाइव करना है तो मुझे. सो दैट्स वेयर आई टुक दैट थर्ड ड्रॉप एज वेल कंसिस्टेंटली. एंड देन आई सेड दैट आई वाज टेकिंग अ ड्रॉप. मैं कॉलेज मतलब जा रहा था लेकिन मैं छोड़ दे रहा था. मैं कॉल सेंटर में जॉब कर रहा हूँ, मुझे नहीं करने का. सो दैट्स वेयर दे थॉट दैट मैं लड़कियों में पढ़ा हूँ या तो ड्रग्स में पढ़ा हूँ. But I took that, I took that like gut decision. 300 रुपए थे, ठीक है. But वही है कि you have to see that how now. See, this is so tricky. Once again I'm telling you that मुझे मालूम नहीं है कि आपके पापा मम्मी इमोशनली कितने स्ट्रांग है. बहुत सारे लाइक एक तो देखो माँ बाप इतने इमोशनल होते हैं ना कि वो हर बार यही बोलेंगे मैं मर जाऊंगी या मैं मर जाऊंगा, तू ऐसा करेगा, तू ये ऐसा करेगी. यू नो, most of the times it happens when you come from a lower middle class family with education, and जब आप अच्छा कमाने लगते हो और फिर लव मैरिज या भागकर या ऐसा कुछ करोगे तो ये डायलॉग वापस आता है. सो हर एक परिवार में ये ट्रेंड होता है और वो आएगा ही मतलब हमेशा. So it's out of their care and because of their own paradigms they say like this, and they are not wrong, they are right at that point. Absolutely. Okay, but see, this is my honest thing. Like if I was your elder brother right now, I was just having a word with my one of my family members. All right, आपके कॉल के पहले ही, और मैंने उनको यही बोला कि I'll call me after 9 because I have calls till 9 PM now. I'll be busy. So हम 9 से 9:30 में बात करेंगे. वही इस टॉपिक पे बात करने का है. क्यों? क्योंकि वो जो फैमिली है, मेरे रिलेटिव्स है, उनके वहां पर मतलब मेरी कजिन सिस्टर है जो कि लव मैरिज करना चाहती है लेकिन नहीं करने दे रहे हैं, एंड ऑल दोस थिंग्स. नाउ बीइंग दैट एल्डर रिलेटिव, दे वांट ऑल द सजेशंस फ्रॉम मी. सो मैं यही बोल रहा हूँ कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है. ठीक है, मैं इतना मतलब आई कंसल्ट पीपल फॉर ऑल दीज थिंग्स, बट मेरे घर में ऐसा सब नहीं मानेंगे मेरा. क्यों? क्योंकि वो इतने साल से मेरे को सुन रहे हैं ना, तो उनको मैं बकवास लगेगा. वैसे ही आप अपने घर में अभी बकवास लगोगे, कुछ भी बोलोगे ना. So same is the case. So this is a very tricky situation, Bhavesh. Like you will have to take a call where you see that no matter what, whatever decision you take, the decision which is against somebody, that kind of decision, whatever you take, if you take, then make sure that अगले 10 साल में आप ऐसा कुछ भी ना करो जिससे 10 साल में उनका नुकसान हो. शायद 2 साल उनका नुकसान होगा, वो दुख
दुखी होंगे, रोना आएगा, लगेगा बेटा गलत लाइन में चढ़ गया है, डिग्री नहीं ले रहा है, क्या करेगा, बर्बाद हो जाएगा। वो 2 साल लगेगा, लेकिन 2 साल में आप सीरियस होंगे तो 2 साल में कुछ तो दिखेगा उनको। ठीक है, so that's where like the second part, because I wanted to start with that second part so that now I can relate the first part, that I feel for the first part which you were saying, I feel that you have a very great voice. Okay, so Thank you. I feel that if you do podcasting very seriously with the same voice, all right, no fancy, I don't know what you're using right now, what are you using? Are you using the normal mic, the headphone mic? The headphone mic. Perfect, then your voice is actually really good. You don't require any modulation or all those equalizers and thing. So if you become that like podcaster who is consistent for 365 days with 365 episodes, I'm telling you, you will be a big shot in podcasting. Okay, you'll be a big shot in podcasting. लिख के ले ले. Thank you. I've said you are the third person whom I'm saying this. First two people, one from South India, जो है वैशाख साबू करके एक है बंदा, uh, Namaskaram. नमस्कारम वाला, yes yes yes. ठीक है, so he is that guy. Second, recently from one of my DP VIP mentoring program, there is one guy known as Rajdeep. उसका भी voice एकदम मतलब he is very मतलब I don't know what to call, but you guys have those voices. So तुम्हारा आवाज भी मतलब ऐसा है, so you can kill it in podcasting like big shot. Okay. Thank you so much. And एक ये थी मेरी एक्चुअली सिचुएशन कुछ ऐसी है. For example, when my father was in 12th class, my grandfather expired. But So Bhavesh, he was. I mean, I'm so sorry to hear that. First of all, I'm extremely sorry, and I'm so and, sorry to. and sorry to interrupt as well. uh, But to that note, I wanted to finish this with second point में जो आपका बात कर रहे थे हम लोग family के yes, related. yes, 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 yes. Second point में see, at the end of the day, I'm not I'm not saying that you should take a strong decision just to go against them. Maybe the other way around for a lot of people might be. ठीक है, just because I have done this, I'm not saying that यही रास्ता है. ठीक Absolutely. है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि वो एक रास्ता तो है, बट दूसरा एक रास्ता ये भी है दैट मे बी आप, पापा बोल रहे हैं कि 4 साल का डिग्री ले लो, ठीक है, आप रिस्पेक्ट रख लो, आप बीटेक करो, लेकिन बीटेक करते करते अगर आप में गुर्दा है ना, तो साइड हसल इतना स्ट्रांग करो, 4 साल 3 साल Yes. जो भी आप स्ट्रीम लेते हो, इतना स्ट्रांग, मतलब मैं जो अभी देखो पॉडकास्टिंग का बोला ना मैंने, like for the next 3 days just do btech and podcasting. I'm telling you, Bhavesh, you don't have to do anything else. No sales funnel, no nothing, no website, kuch mat socho, because podcasting is the easiest form. All you need is कोई एक बस प्राउट जैसा अच्छा वाला अकाउंट ले लो, $12 पर मंथ हो गया, दैट्स इट, 1000 रुपीज पर मंथ. अगर आप 4 साल बीटेक करते हो, 12 into 4 48, 48 into $10 पकड़ो, $480, मीनिंग वर्ड समवेयर अराउंड 35,000 रुपीज. मतलब 35,000 में 4 साल आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो अपने लिए. समझ रहे हो वेयर Person. आई एम गोइंग एग्जैक्टली? पर्सनल ब्रांडिंग के लिए मैं 4 साल में खाली 35,000 की इन्वेस्टमेंट बोल रहा हूँ आपको. Yes, yes, एंड yes. जस्ट इमेजिन 35,000 में अगर आप पॉडकास्टिंग इतना सीरियसली करोगे, जस्ट इमेजिन लाइक वन कोलैब अवे. ठीक है, I mean, I just can't imagine if somebody was there when I was 17. Somebody might have told me that प्रतीक, YouTube बहुत ही बड़ा होने वाला है. अगर मेरे को किसी ने तब बोल दिया होता ना 17 साल की उम्र में, शायद मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर होता, बट कोई बोलने वाला नहीं था. सेम इज द केस राइट नाउ फॉर यू, कि मैं पॉडकास्टिंग का बोल रहा हूं, 4 साल के बाद अगर आप कंसिस्टेंटली करोगे, याद करोगे मुझे. हमेशा. बिल्कुल. ठीक है, Yeah. बताओ. और यू आर सेइंग समथिंग, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. नो, 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 प्लीज डोंट बी. नहीं, नहीं, बस मैं यही कहना चाहता था कि अभी मेरे फादर एक्चुअली आने वाले थे यहाँ पे, बट वो ट्रैफिक जाम में थोड़े फंस गए, तो उन्होंने बोला स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते रहे. सो आई एम डूइंग इट राइट नाउ. सो but my father is really very very consistent that you have to get a degree, you have to get a degree. So ये जो second option है ना, that dropping out and leaving, I, believe me or not, I have that gut feeling that I am going to go
that I will drop between it. I will drop between college because, but I have to go there. नहीं, बट आई गेस योर फादर वुड बी हैप्पी. सी, मुझे तो मालूम नहीं था ना कि आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हो, ठीक है, बट fortunately my thought processes are such that I try to align you kids, you young blood and the elder demographic together. My thoughts are in between. So I give due respect to your young blood who is super enthusiastic and want to do क्या, हाँ फोड़ डालूंगा, मतलब मैं दुनिया में जीत लूंगा, मैं दुनिया, ऐसे होते हैं. And then there is this elder demographic who is mature and silent and calm, who is experienced. ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको वो एक्सपीरियंस के तौर पे कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियसली थोड़ा डर लगता है, ठीक है. सो उसकी वजह से मैं दोनों को मतलब ऐसे आई जस्ट ट्राई माई थॉट्स टू बी इन सच अ वे दैट दे गो इनटू बोथ दीज ईयर्स, यंग ब्लड एज वेल एंड द एक्सपीरियंस्ड गाइज एज वेल. तो शायद अभी, बिकॉज नाउ आई नो दैट दिस इज स्क्रीन रिकॉर्डेड, आई वुड लव फॉर योर डैड टू वॉच दिस एंटायर एपिसोड, ठीक है, Yeah. ताकि ही वुड रेजोनेट, ही वुड रेजोनेट कि हाँ दोनों ही ऑप्शन है. अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपके और आपके पापा के बीच में कैसा कम्युनिकेशन है, हाउ हाउ व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड यू गाइस शेयर व्हेन यू गाइस टॉक और कम्युनिकेट. एवरी पेरेंट हैज अ डिफरेंट बॉन्ड विद देयर किड, सो मतलब वी कैन नॉट कंपेयर. आई हैव अ कंप्लीट डिफरेंट बॉन्ड विद माय डैड. वी आई मीन वी आई नेवर टॉक लाइक दिस टू माय डैड. मैंने कभी बात नहीं की ऐसे, ठीक है. So that's the point which I'm trying to, and probably when my kids would be there, I would have a complete different bond, just like this. So it would be a complete different bond than what I have with my dad with my kids. So that's what I'm passing on to you guys, that अपने पापा के साथ या पेरेंट्स के साथ कैसा आपका बॉन्डिंग है वो सिर्फ आपको ही मालूम होगा. So the processes or the ways which I tell you might resonate, might not resonate, लेकिन मैं दोनों को ही एग्जाम्पल देता हूँ कि आपको भी रास्ता दिखा दिया, and how you can respect your parents and then take decision as well. I've given you both these ways. So don't worry if you're not able to take that drop and like follow those guts right now. Maybe you are 17, so when you will be out of the college, you will be just 22. Yes. You can still do it. Yeah. And then at the age of 22, you will have your podcast of 4 years. Just imagine. Yeah, yeah. That's a great no idea. no matter what path you choose, I mean, the point is, no matter what path you choose, whether you drop and do something, don't do college and do something, or you take a BTech degree in 4 years, show it to your dad, make them happy, make your parents happy, but still do podcasting. So no matter what you do podcasting for 4 years. Yeah. So मेरे फादर को तो टोटली ये मतलब ये जो कंसल्टेंसी कॉल है, सो मेरे फादर को तो बस ये था कि go and ask this whoever this person is, digital Pratik, just go and ask that person that what type of degree would be best for you. So not for me because I know that nothing is related with that field, but अब जैसे कि screen recording हो रही है, so just think that you're talking to my father and just tell, means from your experience, आपकी भी team है, आपके पास भी employees है जो digital field में, so what would be the best career line college के through for this? Sure. So see, I mean, what's your dad's name? Ashutosh. Ashutosh ji, first of all, namaskar, जय माता जी, and hope you're having an awesome time. आपसे बस यही कहना चाहूंगा, मतलब मैं आपको अंकल के तौर पे बुलाऊंगा यहाँ पर, कि मैं अगर एक अंकल्स के साथ बात कर रहा हूँ तो मैं यही बोलता कि आपके बेटे को, मतलब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे ग्रुप में, एक सेकंड, ये रिकॉर्डिंग यहाँ पर ये फोन में हो रहा है ना, मतलब मैं एक आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप बताता हूँ अभी आपको, आप शॉक हो जाओगे. मतलब मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐसे है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई एम एबल टू ट्रेन किड्स लाइक योर्स. ये टीपी विथ डीपी करके मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, मतलब टाइम पास विद डिजिटल प्रतीक. एंड आप शॉक हो जाओगे कि इसमें खाली 3 ही लोग हैं ग्रुप में, ठीक है, 3 है. एक ताशी करके लड़की है और एक त्रिशा करके लड़की है. अब ये दोनों ही लड़की है ना आशुतोष जी, एक है 11 साल की, दूसरी है 12 साल की, ठीक है. सो आई एम हैविंग व्हाट्सएप ग्रुप्स विथ टीन्स, और ये टीन्स मेरे साथ ऐसे बातें करते हैं. एंड व्हाट आई एम डूइंग इज, राइट ओवर हियर आई एम आल्सो शेयरिंग विद देम डिजिटल मार्केटिंग का समथिंग हियर एंड देयर, ठीक है. आई कीप ऑन शेयरिंग क्रिएटिव स्टफ विद देम. ये देखो, मैंने अभी एक दिन पहले ही, also while you are going for it, remember this forever with respect to your parents.
जो मैंने उनके साथ शेयर किया था, एंड देन उनका वॉइस मैसेजेस आता है, दे बिकम हैप्पी अबाउट दैट, आई कीप ऑन गाइडिंग देम, ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर का मैसेजेस आता है, आई शेयर माई स्टोरी एज वेल विद देम, देन आई डू फन स्टफ विद देम. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से आशुतोष जी, कि आजकल के बच्चे को है ना, ये जनरेशन जो नेक्स्ट आ रही है ना, इन लोगों को स्कूल अच्छी है, लेकिन स्कूल से ही कुछ आगे मिलने वाला है वो जरूरी नहीं होने वाला है. द वर्ल्ड इज चेंजिंग सो मच. मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आई एम ऑल्सो एन ऑल एक्सेस मेंबर ऑफ द नंबर वन पर्सनल ग्रोथ कंपनी एंड द एजुकेशन कंपनी विच इज माइंड वैली. तो आई क्लोजली वर्क विथ ऑल दो स्टाफ. तो मैं एक चीज और भी आपको बताता हूँ यहाँ पर कि 2025 में कॉलेज एजुकेशन इन इंडिया वुड बी इररेलेवेंट. मीनिंग, मैं आपको ये बताता हूँ, कहाँ गया फोटो, एक प्रेजेंटेशन है पूरा जो रिसेंटली था. सो पीपल आर बेटिंग $1 million ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग कि कॉलेज का एजुकेशन वुड बी इररेलेवेंट बाय 2025. तो 2025 यानी आज से 4 साल के बाद, 4 साल के बाद यानी आपका बेटा इंजीनियरिंग खत्म कर लेगा, ठीक है. तो इंजीनियरिंग के 4 साल ऐसे आप करवाओ और फिर कुछ कराओ, उससे अच्छा मैं बोलता हूं कि उसको इंजीनियरिंग करना हो तो करे, और करने के साथ अगर वो आप करवाते भी हो और अगर वो करता है ना, तो मैं बताऊं, मैं आपको ये बोलूंगा, मेरे को मिल नहीं रहा है इन शॉर्ट, बट आप अगर वो उसको इंजीनियरिंग करवाओगे ना, तो कभी फोर्स मत करना, ठीक है. मैं आपकी भावना समझता हूँ, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा मत समझना कि डिग्री कर रहा है तो अभी उसको 90% मार्क्स लाने, ये वो, ऐसा कभी मत समझना. वो क्लियर कर ले वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंजीनियरिंग की डिग्री है ना, आपको तभी काम आएगी जो यदि आपको इंजीनियरिंग की जॉब करनी हो या तो आपको मास्टर्स की कोई डिग्री लेनी हो. तो बाकी आपको दिल से बोल रहा हूं, इंजीनियरिंग की डिग्री कहीं पे भी काम नहीं आती है, कहीं पे. मेरी पूरी टीम है ना, वो मतलब मैं, मेरे को मालूम ही नहीं है, मैंने उनका मतलब रेज्यूमे सीवी मांगा ही नहीं है. मैंने अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में रेज्यूमे नहीं बनाया है आशुतोष जी, कभी नहीं बनाया है. इट्स ऑल बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस व्हिच आई माइट हैव इन द पास्ट जॉब्स. और मेरी पहली जॉब भी कॉल सेंटर की जॉब थी जिसमें डिग्री की जरूरत नहीं होती है. बट जस्ट बिकॉज आई स्टार्टेड लर्निंग हाउ टू कम्युनिकेट इन माई कॉल सेंटर जॉब, कस्टमर सर्विस हेड तक पहुंचा, 4 साल लगे मेरे को. उसके बाद वो साथ में ही, कॉल सेंटर की जॉब के साथ में ही मैं डिजिटल मार्केटिंग साइड में कर रहा था, रात को आके करता था, अगर रात की शिफ्ट है तो दिन में करता था. और वही करते करते मेरे को एक डिजिटल मार्केटिंग की जॉब मिली. और वो भी कैसे मिली, बहुत ही बढ़िया किस्सा है. मैं जो कॉल सेंटर में काम करता था, उसका जो मालिक था कंपनी का, वो मेरे को चाहता था. क्यों? क्योंकि मैं परफॉर्म अच्छा करता था जॉब में. और वो जॉब ऐसी है जहां पर डिग्री कोई महत्व की नहीं थी. मेरा बोलना, बोले ना बोर बेचा इन गुजराती भी से, मतलब जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है. तो जितना मतलब आप अच्छे से बोलोगे उतना आपको पैसा मिलेगा, वैसी जॉब थी. तो मेरे मालिक ने मेरे को बोला कि उनके एक फ्रेंड है जो कि कुछ डिजिटल मार्केटिंग का जानना चाहते हैं, और तो ये साइड में कुछ ना कुछ करता रहता है, तो एक बार मिल ले उनसे. तो मैं उनको मिलने गया तो उन्होंने मेरे को एक कंपनी में भेजा, और वो कंपनी को एक डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए था. तो मैंने वहां पर इंटरव्यू दिया. कोई रेज्यूमे नहीं मांगा. उन्होंने बोला कि आप हमारे कंपनी के लिए क्या कर सकते हो. मैंने बोला ये कर सकता हूँ. वो लोग शॉक हो गए कि साला हमारे कंपनी में जो एम्प्लॉइज है वो तो कर ही नहीं रहे, तो ये बंदे को हायर कर ले. तो और वैसे मेरे को वो जॉब मिली थी. तो मेरी पहली भी डिजिटल मार्केटिंग की जॉब ना ऐसे लगी थी. आज मेरी कंपनी में जितने भी लोग हैं ना, उनको मैं रेज्यूमे या डिग्री नहीं मांगता हूं. मैं क्या मांगता हूं कि आप अगर ये प्रोफाइल करना चाहते हो तो ये प्रोफाइल में आप अच्छे कैसे हो या अपना काम बताओ. मीनिंग, अगर किसी को ऐसा सेटअप करना है या ऐसा वीडियो एडिटिंग करना है, आज है कंटेंट का जमाना. हर एक कंपनी को कंटेंट चाहिए, और कंटेंट के 4 ही शेप होते हैं: टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो एंड वीडियो. अगर ये 4 शेप्स में अगर आप कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हो तो आपको जॉब मिल सकती है. मतलब अभी भावेश को, आपके बेटे को जॉब मिल सकती है अगर वो एक अच्छा वीडियो एडिटर बन सकता है या अच्छा वीडियो एडिटर हो, उसको अभी भी जॉब मिल सकती है 10,000 रुपए की. और मैं बेट लगा के बोलता हूँ 4 साल के बाद इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद उसको स्टार्टिंग में 15,000 की जॉब लगेगी, उससे ज्यादा नहीं लगने वाली है. तो क्या आप चाहते हो 4 साल आपका जो इन्वेस्टमेंट हो उसके बाद वो 15,000 की जॉब लगेगा, और एक कंपनी में अगर काम करेगा ना तो 10% से 15% उसका अप्रिसिएशन होगा हर साल, ठीक है.
तो वैसे करके आपके जो इंजीनियरिंग में पैसे लगेंगे उतने पैसे रिकवर होने में ही उसको 4 साल लग जाएंगे, 2 साल लग जाएंगे, ठीक है। तो 6 साल में उतने पैसे वापस आएंगे जितने आप डालने वाले। तो आप समझो अगर 6 साल, मैं गारंटी देता हूं, आपने शायद ये पूरा अभी रिकॉर्डिंग सुन भी लिया होगा इसके पहले भी, और मेरे को मालूम भी नहीं था स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है, उससे पहले मैं भावेश को बोल रहा हूँ कि चाहे तू कॉलेज करे ना करे तो पॉडकास्टिंग जरूर करना, ठीक है। और पॉडकास्टिंग करने के लिए मतलब आप सोचो ना, एक 17 साल का लड़का, मुझे मालूम भी नहीं है कि वो क्यों मेरे पास आ रहा है, लेकिन जब आ रहा है तो मुझे 1700 रुपए दे रहा है आधे घंटे बात करने का। क्यों दे रहा है? क्या मेरे पास डिग्री है? नहीं, मेरे पास एक्सपीरियंस है, टैलेंट है, और 10 साल करने का काम का एक मतलब ब्रांड बनाया है, ठीक है। तो वही चीजें मैं इन लोगों को सिखा रहा हूँ, इन यूथ, इंडियन यूथ को। द रीजन व्हाई आई एम जस्ट टैपिंग इनटू इंडियन ऑडियंस इज बिकॉज ऑफ दिस, कि मतलब जब मैंने शुरुआत की थी तो लोग यही बोलते थे इंडिया में कि यार ये यूट्यूब क्या है, और साला वो यूएस में बैठा हुआ 17 साल का बच्चा यूट्यूब में से पैसे कमा रहा था तब। तब मुझे खटका कि अपना इंडिया कितना पीछे है, यंगस्टर्स को इतना मालूम ही नहीं है। मतलब मेरे को आज मैंने, मतलब आपने ये कॉल सुना होगा, शुरुआत में भी मैंने बोला था कि मेरे को शायद 17 साल के मैं जब था तब मेरे को किसी ने बोला होता कि यूट्यूब बहुत बड़ा होने वाला है, तू कर ले भाई, तो मैं शायद कॉलेज के अंदर भी नहीं गया होता, ठीक है। तो यही सब चीजें हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे पापा मम्मी अभी भी नहीं समझते कि मैं क्या करता हूँ। उनको बस इतना मालूम है कि मैं डिजिटल प्रतीक जाना चाहता हूँ अभी, और मैं डिजिटल मार्केटिंग में कुछ करता हूँ। उनको और कुछ मालूम नहीं है। सो इट विल ऑलवेज बी दैट केस इन इंडियन पेरेंटिंग, क्योंकि ये डिजिटलाइजेशन वर्ल्ड बहुत ही मतलब अलग ही दुनिया का हो गया है अभी। एंड बाय 2025 में ये भी आपको बताता हूँ कि जब आप कोई कैफे में, मतलब आपका बेटा जब कैफे में जाएगा ना, तो कैफे में जाने के टाइम पे मोबाइल ऐसे खोलेगा और कैमरा से ऐसे सर्व करेगा, और कैमरा में उसको ऑगमेंटेड रियलिटी में दिखेगा कि यहाँ पर ये रेटिंग कितना है। अभी Yes. अगर आप जाते हो तो अभी आप गूगल में करते हो कि ये होटल का कितना रेटिंग है, वैसा नहीं होगा। तब आप कैमरा ऐसे करोगे और ऑगमेंटेड रियलिटी में आपको दिखेगा, वो नजर में नहीं दिखेगा लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी में दिखेगा आपको। तो ये जमाने में जब जा रहे हो तो इंजीनियरिंग का काम क्या आएगा? और इंजीनियरिंग भी तब काम आएगा अगर भावेश को ऐसी कोई टेक्नोलॉजी बनानी हो, समझ रहे हो? अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अगर आपको बनानी होगी, या तो उसको साइंटिस्ट बनना है, या तो इलॉन मस्क जैसा आपको कुछ मतलब गाड़ी बनानी है, तो इंजीनियरिंग आपको काम आएगा। मतलब आई आई होप दैट आपके पापा को, मतलब ये जो भी है, मतलब आशुतोष जो अगर आप देख रहे हो ये, तो आई होप कि आपको ये मैसेज मेरा मतलब आप पॉजिटिवली लोगे। ऐसा ही समझना कि मतलब मैं मतलब ऐसे ही मैं बात करता हूँ, मैं चाहे किसी किसी भी साथ बात करता हूँ, चाहे मैं ऑफलाइन हूँ ऑनलाइन हूँ, आई जस्ट टॉक प्रैक्टिकलिटी। मैं बुलशिट नॉनसेंस रारा चीजें बात नहीं करता हूँ। ये बच्चे जो मेरे को फॉलो करते हैं इनको मालूम है, मतलब कोई ऑफ वाली जिंदगी नहीं बताऊंगा। अगर बतानी होगी तो इन लोगों को मालूम है मेरे पास क्या क्या होता है क्या है, पर मुझे वो अच्छा नहीं लगता है कभी भी। एंड आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड आशुतोष जी। तो मतलब 300 रुपये से जर्नी शुरू की है और अपने दम पे ही खड़ा हुआ हूँ, एंड दैट्स इट। बाकी तो मतलब एक रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि आपके बच्चे को बस अच्छी राह पे चलाओ आप। जो भी है दोनों फ्रेंड्स की तरह बात करना एक दूसरे से, और जो भी एक डिसीजन लो वो दोनों के हित में सोच के लेना, ठीक है। बस ऐसी में दुआ और आशा रखूंगा। Thank you so much. Thank you so much.